Ricky sir, are you there? Yes, absolutely. I'm live, Vishal. Yes, very much here. Good evening, Ricky sir. How are you? Good. आप बताएं कैसे हैं? I'm Things really are good. good. So nice to see you. And friends, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं रिकी सर को nearly around something like 17 to 18 years have been in touch. And to start with, when I used to have my own gym, and a very handsome kind of a guy, a model kind of a guy. He just walked in, and I was really impressed by the personality. और बाद में पता चला he had been into modeling from long time, done some great shoots, certain with Gracie Singh and many celebrities also, and then eventually he entered into the your gym business, that is gifting and everything, and gradually he worked with the largest and the biggest gym chains in country, और उन्हें प्रमोट करने में और उनको साथ देने में इनका बहुत 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 बड़ा हाथ है. एंड आफ्टर दिस क्रूशियल टाइम्स, कोरोना टाइम्स, जो कि एक इस वक्त फिटनेस इंडस्ट्री के लिए बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, मैं I'm feeling really happy to talk to a guy who can really, who had really helped people, gyms, to have big sales, big time big sales. So, sir, how are you feeling today? Good, sir. Good. How about you? Good to hear about your book too. It was nice to see the upcoming book by a upcoming author who has spent so much time in fitness, and so nice to. When is the book launching? Book, it's like we are planning some launch, but the book has already been published. And viewers, मैं आप सबको ये बता दूं यहाँ पर live कि हमारी book जो है वो publish हो चुकी है to on certain platforms, but certain platforms are still pending. So the once it's 100% published, हम definitely सबके साथ share करेंगे. तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि like कौन कौन से जिम चेन्स हैं जिनके साथ आपने काम किया हुआ है, हमारे साथ शेयर So eventually, as you have rightly, discovered, it started long back, about 2001, when the company started as a small corporate gifting company. But eventually, because I was very keen gym goer, so I think I understood the market very well. And having वो नया नया कुछ होता है, डिप्लोमा मार्केटिंग करके आते हो आप, तो आई थिंक वो था जो क्रिएटिव कुछ करने का. So it started with Gold's Gym, Palam Vihar, and that was the first order I remember I did long back when it opened. And basically, I had suggested them at that time that just by, if you know, the current model has moved to a yearly subscription with a gift. So that was the time we actually started it, whereby we would, suppose charging 3,000 rupees per month now, and for 12 months is 36,000 rupees. So, and the offer is for 24,000. I requested, or I told them to bundle it with a great kit, which was a bag, a zipper, and few other things, and it became quite a success. Their closing went up by 5 to 10%, which was even I was not expecting at that time. But I think it's a concept which is very popular in the West, that you tend to gift your customer, or you tend to welcome your customer with a nice welcome kit and a great discount. So that worked at that time. It's still working for most of the games. I had done the launches for a lot of games Anytime Fitness. Rhinos, I did the launch. We met there at the party as well. If you definitely Rhinos के launch में हम मिले भी थे. So then, Golds has been there. UFC Gym has been the latest one which we are doing. Okay. Anytime Fitness we've done. So I think all major chains, the gym owners come and they discuss, and we understand what is the problem, and we try to come up with a solution whereby the closing is good. जो एक टारगेट होता है मॉडर्न जिम में कि भाई पहले दिन 300 होना चाहिए, साल में 1200 होना चाहिए, वो कैसे अचीव करना है, वो हम उनको हेल्प करते हैं. Got a call. Yeah. That's really good. That's really good. Sir, अभी lately आपने एक अपनी वीडियो लॉन्च की है
धमाल मचा रखा है उस वीडियो ने मार्केट में, मैंने भी देखी है और मैं अपने व्यूअर्स के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो ठीक है, आपने उसमें कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि जिम इंडस्ट्री और जो जिम बिजनेस को कितनी चीजों से अफेक्ट किया गया है, इतनी इन डेप्थ नॉलेज, पहली बात तो कैसे, और उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स हमारे साथ भी शेयर कीजिए, हमारे व्यूअर्स डेफिनेटली देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं उस बात को। See, basically, I think जो मेरा वो था, it was spur of the moment thing which I made it. It was done, you know, keeping the situation of the gym employees in mind. Because even in the lockdown, I had been visiting few gyms which wanted to discuss how to reopen, and so we've been having meetings. But it's a pity to see, you know, almost 2 lakh people plus are affected by the government's decision of not opening the gyms again. And I feel when they can open metro, which is about 50,000 people per day with a protocol, when they can open malls with a protocol, when they can open all the other places with a protocol, then why not the gyms? Because it is not about a gym owners or the gym, मतलब if अगर आप उस chain को समझेंगे, owner invested a lot of money, most of them are in partnerships, जो नए बड़े जिम हैं, कहीं 5 पार्टनर है, कहीं 7 पार्टनर है, कहीं 3 पार्टनर है, there are EMIs, they have huge financial burdens, and then the employees are getting half the salary or no salary, and in case you know they are not able, and इसी के साथ अगर आप, ये तो हो गया जिम वाला सेक्शन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो साथ में जुड़ी हुई हैं। जब हम बात करें सप्लीमेंट इंडस्ट्री की, अगर जिम ही नहीं चलेंगे तो सप्लीमेंट की सेल कहाँ से होगी? जो बॉक्स बनता है सप्लीमेंट का, उसकी सेल कहाँ से होगी? इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ गिफ्टिंग या किट्स दैट आई डू, वो कहाँ से होगा? अब सपोज मेरे यहाँ अक्सर 8-10 जिम्स का कुछ ना कुछ लगा रहता था, अब नाउ दैट एंटायर टीम इज बिकम एम्प्टी बिकॉज दैट मार्केट हैज सडनली यू नो thing, and everything has come down under cost control. Everywhere the business has got so affected, then some of the industries are on the verge of closing, and there is absolutely no support from government on, you know, what you call the money part. You know, पहले पैसा 11% पे मिलता था सीसी लिमिट में, अब गवर्नमेंट ने आपको 8% पे पैसा दे दिया है, तो 18,000 करोड़ 20,000 करोड़ में से तो सिर्फ आपको, you know, it's a loan. तो एक्चुअली जो सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आई हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मुझे लगता है कंजम्पशन कैन रिवाइव डिमांड। मतलब अगर कंजम्पशन होगी तो डिमांड रिवाइव हो जाएगी। तो कंजम्पशन ऐसे होगी कि अगर हर एक के अकाउंट में 5-10 हजार रुपए डाल दीजिए, अगर आप 1 मिनट के लिए ओनर नहीं दे पा रहा, इज ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर, सो इफ गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स इट, एंड लाइक इन कैनेडा or US, if you talk to anywhere across the world, people had been given around $2,000 per month. मतलब जो आदमी $1,000 की नौकरी करता था उसको भी 2,000 सरकार ने दिए कि कोरोना आराम से निकल जाए। So eventually, you know, if you look at the sad state of affairs, and the most important thing which is happening here is government is also losing a lot of revenue by not letting it open. If you look at the GST calculation, you know, a modern gym would set the setup would be anywhere between, if I talk about a UFC, Anytime, Rhino, I think you would agree with me कि 1-1.5 करोड़ से लेके 3-4 करोड़ तक कुछ भी हो सकता है जितनी फ्लोर प्लेट है। अब उसमें अगर 18-20% गवर्नमेंट जाता है तो गवर्नमेंट का भी वो लॉस है, एंड इफ गवर्नमेंट इज अ पार्टी टू, यू नो, व्हाट वी ऑल डू, तो अगर उनको लॉस हो रहा है तो आई फील दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड एंड रियलाइज इट एंड फाइंड अ वे वेयर, you know, they also have to realize कि fitness is the only way to fight corona. एक fit आदमी बच जाएगा, but unfit आदमी और ज्यादा बीमार हो सकता है। तो अगर फिटनेस जरूरी है, तो अगर आ भी जाता है कोरोना तो वो निकल जाएगा, it will pass through. And lot of our friends, you know, people we know have got it and they've all been fine because they were fit. So being fit is more important than, you know, closing gyms. तो वो मुझे लगता है एक एंगल है जो आई थिंक वेयर वी शुड गो एंड मीट द LG एज अ ग्रुप, एंड लॉट ऑफ एसोसिएशंस आर वर्किंग ऑन इट, यू नो, इंडिया एक्टिव है और काफी सारी 14-15 एसोसिएशंस हैं जो काम कर रही हैं इसके ऊपर, एंड आई थिंक वेरी सून द ब्रेक थ्रू शुड कम थ्रू। बट बहुत अभी मुझे लगता है कि व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रियलाइजिंग वेयर यू हैव काइंड ऑफ फाउंड अ वे to actually you know, open things in a system, तो जिम भी सिस्टम के साथ खुला जा सकता है। खुल सकता है। सर एक छोटा सा पॉइंट है, इन योर वीडियो यू हैव मेंशन्ड वन वर्ड दैट इज
nearly 2 lakh jobs have been lost. So is it Will be actually? lost. Yeah, I mean, if you look at the number of gyms and how many people does it employ and the industries, तो आप इसी फिगर के आसपास, it's just an approximation. Because जब आप बात करते हैं डेटा की एकदम, because you know the industry is so fragmented कि कई लोग रजिस्टर्ड ही नहीं है एसोसिएशन में, तो आप एक अंदाजा लेते हो कि एक शहर में इतने जिम होंगे और इतने जिम में, तो जब बाहर खुल गए हैं, गुड़गांव नोएडा खुल गया है, people have started working out there, so you know why not Delhi? So Delhi ko bhi, I think they should give a go ahead and things should be back to normal. People want to feel fit. I've spoken to a lot of customers. You are a gym goer. I am a gym goer. Matlab, if I talk about Rhino, I talk about UFC, the gyms I have visited, they are even ready with a protocol जहाँ उन्होंने glass के partition बना रखे हैं. Anytime I think has also done it. So all the big chains are ready. They have made compartments वो without affecting. तो अगर एक सिस्टम बनता है कि एक घंटे में 5 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे, जो भी एक अप्रूव्ड, जहां यू नो वेयर यू डोंट स्प्रेड द इन्फेक्शन, एंड इफ देयर इज अ प्रोटोकॉल इन प्लेस, आपका टेम्परेचर चेक हो रहा है, आपको ऑक्सीमीटर लगाया जा रहा है, आपको यू नो हर चीज से सैनिटाइज करके आप अंदर आ रहे हो, तो आई थिंक इट कैन बी ट्राइड. कोई उसमें मतलब इट शुड बी गिवन एटलीस्ट अ ट्रायल, एंड इफ देयर आर कंप्लेंट्स देन यस यू नो it can be re-looked into the matter, but I think it should be given a good chance to open. खुलने का वो बहुत जरूरी है. It should open up. कुछ एक बात सिर्फ ये ही नहीं है कि जिम इंडस्ट्री से कुछ चीजें हैं, जो लोग जिम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आई वाज रियली अलार्म्ड बाय योर वीडियो, कुछ लोग हैं जो जिम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जैसा आपका इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, यू मेंशन्ड दैट, एंड जो स्टाफ जुड़ा हुआ है, साथ में जो सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं, जो वो अपने आप में बहुत हाउसकीपिंग की देखिए ना, एक अच्छे जिम में जहाँ 1000 मेंबर है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं. आप हाउसकीपिंग की टीम लीजिए, आप हेड कोच लीजिए, उसके नीचे कोचेस लीजिए, ओनर्स लीजिए, आप गिन लीजिए, और जितने आपके हिसाब से जिम है टोटल कंट्री में, और या जितनी जगह लॉकडाउन है, आप उनसे वो कर लीजिए. तो इट इज बिकॉज वो एक टाइम तक मेरे को लगता है ओनर संभाल सकते हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी हाई. You know, if you look at the money part, if he's taken a big loan and he's just giving, and he's not getting any revenue, so he's sitting on a very tight seat. So बहुत जरूरी है that you know the money starts coming back to them, where they are able to save the industries. You know, the equipment manufacturer, बहुत लोग हैं जो affected. So I think it's important, you know, government realizes it and finds a way to kind of you know do something about it in a right way, in a nice way, जहाँ ये चीज हम एड्रेस कर सकें. अच्छा, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ. at times we used to think that if we'll work out, we'll go to the gym or do any fitness center, so we'll be like more immune, we'll be like more fit, we'll be in a better condition. And today the things are altogether different, the scenario is altogether different, that if we like the fitness centers are altogether closed, and if we visit them, we हमें प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ ना कुछ. The scenario has altogether changed. नहीं, सिनेरियो देखिए, एक सिस्टम है ना, आप उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप क्यों वो होंगे. और वैसे भी आई थिंक जो रेगुलर जिम गोअर से, मतलब आई हैव नॉट सीन मेनी फॉलिंग डाउन टू कोरोना इन टर्म्स ऑफ सिवियर इलनेस. अगर होता भी है तो माइल्ड होता है, दे वुड यू नो रन थ्रू इट. मे बी होके निकल भी गया हो, पता नहीं. It's only, you know, जिसको आता है माइल्ड, but if it gets extreme, yes, for seniors we have to be very careful. You know, if you are going out, like you're going out, I'm going out, you have to be very careful with it. And, you know, elders are out. सर, एक बहुत क्रूशियल चीज है कि प्रॉब्लम की तो सब बात करते हैं, देयर इज ऑल नेगेटिविटीज अराउंड, बहुत डिप्रेशन है, लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन सोल्यूशन की कोई बात नहीं करता. बट आई फील के टॉक अबाउट दिस सोल्यूशन ऑल्सो. ठीक है, आप जिम खुल ही जाएंगे कुछ दिनों में, तो हाउ टू गेट बैक, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है. बिकॉज फुटफॉल नहीं मिलेगा, क्लाइंट घबराएगा वहां जाने से, आपको नए क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, आपको अपने जिम को प्रमोट भी करना है, रन भी करना है, एक्सपेंसेस भी देखने हैं, सब कुछ करना है. तो लाइक हाउ दे कैन कम बैक, हाउ? आप देखिए इसको, मैं
I would say we have to divide the problem into two parts. One is the customer, the mindset, जो डरा हुआ customer. I think Right. सबसे पहले जो तो उसको काम करना पड़ेगा the mindset के ऊपर, where probably you send them videos, you send them communication, जहाँ उन्हें ये मतलब उनके मन को ये लगे कि we are going to a safe place and everything is taken care. So जब वो मन He से should feel he is safe. Right. तो डर हटना बहुत जरूरी है कि पहला कदम उनके अंदर आदमी रखे. So it is very, very important that that fear has to go away. It could be in a form of a like you do shows, it could be talk show, it could be something that anything that you think every gym owner knows कि उसके कस्टमर को क्या अच्छा लगता है, किस तरह का उसके पास क्राउड आता है. तो आई थिंक वो उस हिसाब से अगर अपनी स्ट्रेटजी बनाए और कम्युनिकेट करें कस्टमर्स को कि नहीं, यू आर कमिंग बैक टू अ सेफ जिम, वी हैव डन आवर ड्यू डिलिजेंस एंड वी वुड बी मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. एंड फिर उसमें इतनी दिक्कत नहीं है. दूसरी चीज है बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक वी कैन आल्सो एड्रेस दैट लॉट ऑफ पीपल एंड बिजनेसेस हैव लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग द. तो जब पैसा नहीं है लोगों के पास, so you have to find a way whereby the payment or the I would say the renewals are made the easiest ever in last 100 years. अगर हम बात करते हैं 20 साल में because it is an exception, so you have to come with some irresistible offer कि जिससे कस्टमर मतलब वो इतनी मजेदार ऑफर चाहिए कि जिसको कस्टमर ना कह सके. It could be in form of a आजकल मैंने इसका वो जो और सब पे देखा, लोग आपको पैसा डिमो पूरा मिल जाता है, मतलब नियम से बन के कस्टमर को ज्यादा देता है तो ऊपर 6 months 12 months 24 months. So I think वो हमारे जब मैं used to work and so I had a European where I started my career. We always used to say one thing, addiction first, restrictions afterwards. फर्स्ट एडिक्ट तक आज हमारा वही है बहुत अमेजिंग बंदे को ये ना लगे कि मैं बहुत बड़ा अमाउंट वो कर रहा हूँ एंड मेक इट वेरी इजी, मतलब पेमेंट स्कीम. ऑफ कोर्स जो करते हैं प्रमोशनल ऑफर बंडल अप करते हैं, जो बनाते हैं करके रूटीन चीज चल रही थी, बट मुझे लगता है उनमें भी अब दोबारा रिवर्स करने की जरूरत है. और एक बहुत अमेजिंग आइडिया, आई वाज सर्चिंग द इंटरनेट 2-3 days back and I come across this article in marketing where the example was given by Burger King not in India but abroad. वो क्या करते हैं कि अगर उनके काउंटर पे आकर कोई भी उनको ऑर्डर देता है 1 fries 2 burgers and 1 chicken coke, तो दे काउंटर से जो भी ऑफर आपने दिया वो मास्क के ऊपर प्रिंट हो जाता है, वो मुंह पे आप लगा लेते हो और जब आप बाहर निकलते हो, आप ट्रेन में जाते हो, घर जाते हो, तो यू आर एक्चुअली एडवर्टाइजिंग. सो दे वर मेकिंग कस्टमर सेफ एंड दे वर एडवर्टाइजिंग. सो मुझे लगता है कि mask is the most effective form of advertising. तो पिछले 100 साल में अभी भी कस्टमर ने आपको अपना मुंह नहीं दिया है एडवर्टाइज करने के लिए. एंड इट कॉस्ट यू पर डे. अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एक होर्डिंग से के साथ, अ होर्डिंग कॉस्ट यू फ्रॉम 3,000 to 10,000 rupees per day. But a guy wearing your name on his face for 8 hours, 10 hours, 12 hours, इससे बढ़िया I think वो जो कल्चर चाहिए ना कॉन्फिडेंस देने का, masks can do that. Like अगर fitness is ideal, fitness is fighting corona या कुछ भी अच्छी quirky statements आप मास्क के ऊपर डालते हैं, तो मुझे लगता है that can do wonders because उसको वो दिखेगा जिम से कोई निकल रहा है, उसके बहुत अच्छी सी I love fitness, I can beat corona, I go to beat corona. Anything with a small logo of your brand, so it can do the talking because I love that Burger King example. I'm going to share the audience and actually evaluate that
मास्क कॉस्ट about 55-60 rupees with a logo. 2 महीने वॉश एंड वेयर में होता है तो 30 rupees a month, 1 rupee per day. It's the cost which is a no brainer. मतलब डेफिनेटली इससे इकोनॉमिकल और इफेक्टिव वे नहीं मिल सकता आपको। बिल्कुल। No तो doubt about it. वो हाँ, और उससे एक ना मैसेज भी जाता है। आप देखिए कभी भी प्रोटेस्ट किया जाता है या कभी आवाज उठाई जाती है हिंदी पिक्चरों में, काला पत्थर से, या वो जो पुरानी अमिताभ बच्चन की पिक्चरें होती थी, यहाँ पे काला पट्टा बांध देते हैं, उसके ऊपर कुछ काला लिखा पट्टा, होता है। राइट। अब है वो हथियार बदल गया, स्टाइल बदल गया है। अगर उसमें एक स्टोरी बनाते हैं तो मुझे लगता है इट विल डू वंडर्स। नॉट ओनली विल इट गिव यू द राइट काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग, बट इट इज वेरी वेरी cost effective and no I mean never it yes you could advertise at 1 rupee per day। तो थोड़ा सा चैनलाइज करते हैं इसको। लाइक पहली चीज तो जो आपने बताई वो ये कि द कस्टमर को सेफ फील करवाना सबसे पहले तो बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी कस्टमर की काउंसलिंग भी कर सकते हैं हम। वी कैन टॉक टू हिम, वी कैन जस्ट मेक हिम फील सेफ। उसको हम अपना जो जिम है वो दिखा सकते हैं या उसकी वीडियोस बनाकर भी वी कैन पोस्ट। जैसा कि आपने कहा अभी राइनोज है या एनी टाइम है, इन लोगों ने जो शील्डिंग वगैरह भी शुरू कर दी है, मैंने वीडियोस भी देखी हैं, ऐसी बात नहीं है। राइनो का मैं आपको भेजूंगा। व्हेन यू डू अ री रिकॉर्डिंग एंड यू रिप्रेजेंट द शो, आई वुड लाइक यू मे बी यू कैन पीपल, इट विल गिव देम आइडिया टू यू नो एक्चुअली हाउ टू वर्क इन अ बहुत अच्छा सिस्टम है। हाँ, नहीं डेफिनेटली। And we can book time slots for people so that they can come and work out. लेकिन सर एक प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर हम टाइम स्लॉट्स बुक करते हैं या द नंबर ऑफ मेंबर्स अगर कम करते हैं तो वो जो स्केल ऑफ इकोनॉमीज है वो आप कैसे उसको कैसे मैनेज करेंगे। आज सबसे बड़ा डर, अगर मैं जिम ओनर हूँ, डोंट माइंड, अगर मैं एक जिम ओनर हूँ तो आज मैं ये सोचूंगा यार मेरी स्ट्रेंथ 500 लोगों की थी, अगर मैं 25% को अलाउ करता हूँ तो हाउ विल आई मेंटेन माय ब्रेक इवन, हाउ विल आई मेंटेन माय एक्सपेंसेस, हाउ विल आई डू दैट। देखो अभी विशाल, द थिंग इज कि दिस इज वन एक्सेप्शन व्हिच हैज नेवर हैपेंड इन 100 years नेवर nobody has yes there are no rules, you have to try, you have to see what works. Maybe you will try 10 different things but one will work, but you have to 10 try things, you have to try 10 things on it। वो बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा। हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट बहुत जरूरी है मन को जानना कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या उसके फियर्स को एड्रेस करना, उसको कॉन्फिडेंस देना। मे बी थोड़ा सा सर्विसेज की वैल्यू एडिशन करके वी कैन जस्ट इंक्रीज सम प्राइस, मे बी you see that is experimentation, you know your area the best। अगर आपका जिम साउथ दिल्ली में है या सेंट्रल दिल्ली में है या वेस्ट दिल्ली में है, you cannot have a same strategy for all three। What works in south will work for west delhi, what works in west delhi will not work for central delhi। तो ये तो जो चला रहा है उसको पता है कि मेरी पल्स क्या है, तो you have to catch the pulse right। and बहुत जरूरी है कि people understand this, people evaluate this, and obviously गवर्नमेंट को भी मैसेज जाना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक इट कैन स्टार्ट विद मास्क्स अराउंड द जिम। आप अपने मेंबर्स को कुछ भेजिए, उनसे बात कीजिए। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द जिम्स आर रनिंग होम सेशंस, बट होम में थोड़ा सा मोटिवेशन की दिक्कत रहती है। आई हैव आल्सो ट्राइड इट, आई डिड इट फॉर अ मंथ, बट वो दैट it's really difficult to carry on with it. Like it's really difficult for the client as well as the trainer to maintain that proper tempo of the workout. It's really difficult, challenging मैं कहूँगा, difficult तो नहीं है, challenging है बहुत ज़्यादा। मतलब I think if the trainers are trained well, there are so many good companies which are into this training business for trainers, and the staff, the owners can brief them. A safety protocol was in place। मतलब while I had some personal work, I was at Rhino Shalimar Bagh। It's a beautiful gym, and the way I entered the gym, I was so happy। The guy completely scanned me, temperature, checked me, everything. Then my clothes were sanitized. So gyms are ready। It's about giving them a chance। So that I think it should be given। But yes,
जो स्मॉल टाइम जिम्स हैं उनको एजुकेट करना प्रॉब्ली गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है, बिकॉज यू नो एक सिस्टम में जो जिम है वो तो समझ लेगा, बट जो छोटा बेसमेंट जिम है यू नो विद अ स्मॉलर रेंटल, स्मॉलर मेंबर्स, उनके लिए डेफिनेटली यू नो ट्रेनिंग देम इज आल्सो अनदर चैलेंज व्हिच आई थिंक व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज द बेस्ट ऑफ इट. बट हम लोग वी कैन ओनली सजेस्ट, बट yes, as I told you, you know, amazing offers which have never been there before, giving people more time to pay. जो लॉकडाउन में बंद रहा, आई थिंक उसको कस्टमर्स को अगर फोरफीट ना किया जाए, पैसे को उतना एक्सटेंशन दिया जाए, एनीथिंग व्हिच गिव्स कॉन्फिडेंस. यू हैव टू यू नो टॉक टू योर कस्टमर्स, कम आउट विद अ सॉल्यूशन एंड देन गो अबाउट इट. अच्छा सर, वन थिंग आई वुड लाइक टू से, यहाँ थोड़ा सा आपकी एक्सपर्टीज की मुझे बड़ी जरूरत है. वन थिंग यू आर रियली गुड एट, दैट इज ब्रांडिंग. मतलब आई कैन रियली चैलेंज, लाइक मैंने जब जिम शुरू किया था, I was really least bothered about branding and everything. You guided me, you taught me, and you were there. Like you helped me develop that brand. And frankly speaking, I am till date I am carrying on with that brand. Sir, abhi bhi it's your T-shirt. I remember, right? So Good. just help, give your expertise regarding this. जो टी-शर्ट्स हैं, आपका जो जिम बैग्स हैं, शेकर्स हैं, सिपर्स हैं, लाइक कस्टमर, जैसे मुझे आपने हमेशा कहा, कस्टमर घर जाए तो कुछ लेकर जाए. उसको याद रहना चाहिए कि यार आई बिलोंग टू, मतलब ही शुड फील एज अ फैमिली. इट्स नॉट अबाउट द क्लाइंट एंड द प्रोवाइडर रिलेशनशिप. ही शुड फील लाइक अ फैमिली. सो दैट लाइक हाउ इज दैट स्ट्रैटेजी कैरिड अबाउट? क्योंकि आज की डेट में लोग ब्रांड का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल भी सोचते नहीं है उस तरह से, यार खर्चा होगा, छोड़ो यार, कौन 200 रुपए पर बंदा देगा, या मतलब ये नहीं, ये सोच नहीं चाहिए अब. आई वॉन्ट पीपल, आप प्लीज, I need your guidance with that. If you remember our conversation, Vishal, the first thing I told you कि if you are with a mindset कि आप अपने ब्रांड पे ये खर्चा कर रहे हो, you are starting on a wrong page. ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने नाम पे, अपने ब्रांड पे, जो आगे आपको बेटर रिटर्न देगी. पहले तो वो आपको लेंस ही बदलना होगा कि मैं खर्चा कर रहा हूँ. नहीं, आप खर्चा नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो. जब आप अच्छी जगह जाके खाना खाते हो, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनते हो, अच्छे जूते खरीदते हो, तो जिस चीज से आपका बिजनेस चलता है उस पे इन्वेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? यू हैव टू टेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. नंबर 1. नंबर 2, होता क्या है, जब शुरू किया था व्हेन यू हैड योर जिम, तब बेसिकली क्या होता था कि लोग यू नो सपोज उस जमाने की अगर मैं बात करूं, तो अगर 3 लाख रुपए का जिम का एक वो होता बजट होता था लॉन्च का, जिसमें सेलिब्रिटी ने भी आना है, जिसमें पार्टी भी होनी है, होर्डिंग भी लगने हैं 2-3 एरिया में, और वो एंड के जो 10-20 हजार रुपए बचते थे ना, तो वो कहते थे कि भैया इसको गिफ्ट बनवा लो. मतलब ये माइंडसेट था आज से 15-20 साल पहले. बट इफ यू विल study the model of modern gyms, they never give you a yearly membership without a gift. जितने भी modern chains हैं, जो बड़ा setup है, you know, chain of gyms हैं, the reason is because you have to welcome the customer, number 1. you know, अगर मैं आपको कुछ आपसे मिलने आता हूँ, आपको कुछ देता हूँ बिना आपके मांगे हुए, आपको अच्छा ही लगेगा. So there is a feel good from inside, you know, you feel good from inside, and that is the beauty of gifting, कि वो bonding customer के साथ relationship better करता है. और इट इज अबाउट, मतलब इट इज अबाउट गेटिंग दैट सेंटिमेंट राइट. बैग आप अच्छा भी दे सकते हैं, बुरा भी दे सकते हैं, 100 रुपए में भी बना सकते हैं, 500 में भी बना सकते हैं, और 2000 में भी बना सकते हैं. मगर द फैक्ट दैट यू आर प्रेजेंटिंग इट एज अ गिफ्ट व्हेन द कस्टमर वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, इट बिकम्स अ फील गुड फैक्टर इनसाइड. जब फील गुड होता है तो इट इज द फर्स्ट स्टेप पॉजिटिव. आप आगे बढ़े एक रिलेशनशिप विद योर कस्टमर, उस चेन में आप एक लेवल आगे हो जाते हैं. अब जब बात आई रिकॉल की, बात आई अब ये मैं एक XY जिम में मेंबर हूँ, आप एक XYZ जिम में मेंबर है. जब भी हम वो बैग लेके निकलते हैं और अपने घर तक अज्यूम करते हैं कि एक जिम का नेबरहुड एरिया से ही लोग आते हैं, आसपास से ही लोग आते हैं, अक्सर पैदल आते हैं, तो लुक एट दैट बैग डूइंग द एडवर्टाइजिंग फॉर यू. दैट बैग will be advertising your brand.
and it will give, you know, all the people who are not members, it will tell them कि भाई ये बहुत अच्छा जिम है. It creates an image about you, it creates an aura about you कि भाई हाँ ये एक अच्छा जिम है, चीजें दिख रही हैं, नाम दिख रहा है. और इवेंचुअली जब हम आउटडोर एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हम ये क्या करते हैं, हम सिर्फ आईबॉल्स देखने के ही तो पैसे देते हैं. आज कोई भी होर्डिंग आपको 2-2.5 लाख रुपए से कम नहीं मिलती है अच्छे एरिया में, प्राइम लोकेशन पे. आप मिनिमम 2 लाख रुपए भी पकड़ लो, कोरोना में 1.5 लाख हो गया होगा, आप उसको 30 से डिवाइड करो, 5,000 रुपए पर डे. बट अगर आप उसको इफेक्टिव करो कि एक बैग कस्टमर 6 महीने लेके चलता है, लेट्स से इट कॉस्ट यू 300 रुपीज, इट कॉस्ट यू 50 रुपीज अ मंथ. एंड आईबॉल्स आप देखिए कि अगर सारे मेंबर आपके बैग ला रहे हैं, वहां द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन इज डू नॉट डू चीप बैग्स, डू नॉट डू you know substandard merchandise, do not go for सबसे सस्ता बैग. Always pick merchandise which represents your brand, preferably in colors of your brand, something that talks highly about your, क्योंकि अगर अच्छा quality merchandise है, it gives an impression कि you are very worried about your quality. I mean it tells the customer कि आप इसमें भी quality अगर दिखेगी तो कस्टमर ये कहेगा नहीं ठीक ठाक होगा जी, यार सब कुछ बढ़िया है, इनका इंटीरियर बढ़िया है, मर्चेंटाइज दिखता है. इट इज ऑल अबाउट ब्रांड रिकॉल. ब्रांड रिकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कोका कोला में आमिर खान, यू नेम अ एक्टर, जिसको नहीं, वो किस लिए कोका कोला पीते हुए दिखाते हैं, ये एक रिकॉल ही तो होता है कि आप ऑब्वियसली क्योंकि किसी भी जिम ओनर के पास वैसे बजट्स नहीं है कि वो रेडियो एफएम पे मेगा एड्स कर सके, किसी जिम ओनर के पास ऐसे बड़े वो नहीं है कि वो ये सब चीजें कर सके. दिस इज द ओनली वे अ जिम ओनर इन अ लिमिटेड बजट, 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, depending whatever is your pocket, can at least start. एंड लॉन्ग रन में ये आपको हेल्प करेगा क्लोज करने में, क्योंकि आप जब कस्टमर को, सपोज द किट कॉस्ट यू 500-600 रुपीज, बट कस्टमर को आप कहते हो माई ऑफर इज 36,000 रुपीज, इफ यू बुक नाउ आई एम गिविंग इट टू यू फॉर 20,000 रुपीज एंड आई एम गिविंग यू अ गिफ्ट वर्थ 3,000 रुपीज फ्री. तो वो आपकी ऑफर में बहुत जान आ जाती है. एंड प्लस नेक्स्ट 6 months 1 year वो बार बार उसको भी याद दिलाती रहेगी. अगर अच्छा मर्चेंटाइज होगा दे विल रिमेम्बर इट. एंड दूसरा जो आप बात कर रहे थे कि मेरा ब्रेक इवन कैसा होगा, तो अब्रॉड ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है. इट इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ब्रांड स्टोर. ब्रांड स्टोर में क्या होता है कि आप अपने जिम में अपने आइडियाज से चीजें बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये स्टेटमेंट बहुत पसंद आई, इम्प्रूवमेंट बिगिंस विद एन आई. ये मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने इसको अपने मग पे लिखवा दिया कि जब भी मैं चाय पीऊं आई वांट अ रिकॉल. तो ऐसे जो भी आप स्टेटमेंट या वैल्यूज अपने कस्टमर के अंदर लाना चाहते हैं, आप इस तरह की काफी चीजें बनवा के बेच भी सकते हैं. सो दैट बिकम्स एन एडिशनल रेवेन्यू. अगर आपने टैगी अच्छी टी शर्ट्स बनाई जिसके ऊपर टैगलाइंस हैं फिटनेस के बारे में, या एक आपका अपना स्टाइल है, एक आपका अपना एक देयर इज अ वे यू डू योर मार्केटिंग, जो आपका मार्केटिंग मैसेज है, अगर वो मर्चेंटाइज में नजर आ रहा है, तो इन द लॉन्ग रन एक कस्टमर को आपने मेंबरशिप, फिर हर महीने उसको आपने 2-3 चीजें बेची, तो मार्केटिंग की भाषा में हम इसको क्रॉस सेल या अपसेल कहते हैं कि वो मेंबरशिप के बाद भी आप उसी को और चीजें बेच रहे हैं और प्रॉफिट आपका पर कस्टमर बढ़ता जा रहा है. मतलब लेट्स से अगर एक टी शर्ट में आपने 200-300 रुपीज का मार्जिन है, Okay. तो आप उसने बैग अभी सिपर लिया और एक कस्टमर से आपको एडिशनल 1,000 रुपीज मिल गए महीने में, जो आपके पास वैसे नहीं थे, और प्लस आपका नाम भी बाहर जा रहा है. इट इज गोइंग टू प्लेसेस, हर जगह आपका नाम दिख रहा है. वो ऑफिस सिपर लेके जाएगा, टी-शर्ट पहन के, हो सकता है फ्राइडे सैटरडे या अपने घर में कॉलोनी में जब वॉक करेगा पार्क के आसपास, उसे पड़ोसी देखेंगे. इट इज योर मैसेज विच इज गेटिंग थ्रू. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू. अच्छी क्रिएटिविटी हो, आपकी एजेंसी अगर अच्छी है, यू कैन डू वंडर्स आउट ऑफ टी शर्ट्स, मग्स, सिपर्स. इट इज नॉट जस्ट अ सिपर, इट इज एन आइडेंटिटी स्टेटमेंट. अगर आप उस स्पिरिट के साथ काम करते हैं मर्चेंटाइज पे कि दिस इज मी, जैसे आप अपने कपड़े चूज करते हैं, जैसे आप अपना स्टाइल डिफाइन करते हैं, यू आर अ वेरी स्टाइलिश पर्सन, आई सी यू वेरी वेल ड्रेस्ड. इफ यू कैन डिफाइन योर स्टाइल, can't you define your statement in merchandise which is sellable? Can't you create ideas which would sell if you are the gym owner? And it is an additional revenue. तो try करना पड़ेगा. It may work, it may not work. India typically it is a new concept. It may not work. People may not like to carry your name making a payment. तो आप अपना नाम छोटा कर दीजिए, स्टेटमेंट को बड़ा कर दीजिए. बट ये तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी पता चलेगा आपको क्या हो रहा है. एक्सपीरियंस करना जरूरी है, ऐसे थोड़ा मुश्किल होगा.
एक्चुअली क्या है सर, हम लोग ना इसे एक एक्सपेंस मानते हैं, एज इट सेड, इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स रियली एन इन्वेस्टमेंट, एंड दैट टू कि क्लाइंट आपसे जुड़ा रहे, उसे वैल्यू फॉर मनी मिलता रहे, और वो उसी मतलब उसका जो एक फैमिली बॉन्डिंग है, एक जो रिलेशनशिप है, वो उसका चलता रहेगा। और नहीं, दिस और कोई भी रिलेशनशिप में आप देखिए, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, आप गिफ्ट्स देते हो ना। ये थोड़ी ना कि शादी हो गई तो आप गिफ्ट नहीं लेके आते, और अच्छा ही लगता है। आपकी वाइफ अगर लेके आती है, मैं अपनी वाइफ के लिए लेके जाता हूँ, इट ऑलवेज फील गुड। तो आप कुछ सरप्राइज करते हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। आप ऐसे मग्स पे परफॉर्मर ऑफ द मंथ लिखवा सकते हैं, और जो आपका 30 days जिम में आ रहा है उसको एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। इट विल मोटिवेट the clan around him कि now next month I have to win that mug. So you can make it very, experimentative. You can make it very डेफिनेटली goal oriented. कस्टमर जब तक समझेंगे या मेंबर समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। एज अ फैमिली मेंबर हम जिस दिन समझना शुरू कर देंगे, शायद उसके बाद चीजें कुछ डिफरेंट और बेटर हो जाएंगी। एक और बात है विशाल, यहाँ देखो, एक तो मेंबर्स तो समझना ही पड़ेगा, बट प्लीज रिमेम्बर, आपने उसे नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल लेना है। तो वो कैसे होगा? वो रिन्यूअल ऐसे होगा कि अगर उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। डेफिनेटली अगर लेट्स से मैं आपके पास जिम में आया कि यू आर माय ट्रेनर एंड आई हैव अ गोल ऑफ losing 20 kgs in the coming year or 10 kgs in the coming year, but during the 11 months or 12 months आपके ट्रेनर ने मेरे को ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। I was not monitored कि why am I not coming, a call was not coming to me कि रिकी सर क्यों नहीं आया जिम में। सर नहीं, इट जनरली हैपेंस। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, सपोज आई हैव टू डिलीवर। अगर मैं सपोज एक XYZ चीज के लिए करता हूँ, आई हैव टू डिलीवर द बेस्ट। तो अगर एक कस्टमर के पास फिटनेस के लिए आ रहा है और उसका गोल है टू बी फिट, तो और अगर आप उसको 11 महीने बिल्कुल छोड़ दो और 12वें महीने को सर रिन्यूअल हो गया, अब आपको सब कुछ देंगे, तो इट्स नॉट गोना वर्क। यू गॉट टू बी ऑन you got to be on his head. You got to keep investing on your brand. You have to change your mindset. जहां आप ये जो खर्चा कर रहा हूं मैं अपने जिम पे, उसको हटा के मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं अपने ब्रांड पे, क्योंकि ब्रांड ही आपको आगे रिटर्न देगा। आपने 1 से 2 जिम करने हैं, ब्रांड की वजह से होगा। आपने 3 करने हैं, ब्रांड की वजह से होगा। आपको अगर compete करना है बड़े लोगों के सामने, तो उनका फाइनेंशियल मसल बहुत डीप है। सिर्फ आपकी सर्विसेज आपको डिफरेंशिएट करेंगी कि कितना पर्सनली, कितने जिम्स मैं जानता हूँ पर्सनली जो सिर्फ ओनर के फेस पे चलते हैं, बिकॉज द ओनर इज सो डेडिकेटेडली वर्किंग। आई थिंक आई हैव वर्कड अंडर यू or at your gym. I was amazed with the kind of attention we all used to get from you and your partner, and everyone was always on the floor looking, sir ye nahi hua, wo nahi hua, ye karo, wo karo. So I still, though it's been very old, but I still remember it because it was a good experience. So similarly, so eventually agar I mean, look at the dedication actually gets so many things out of you. I mean, I'm sure मुझे अपनी हमारी कॉन्वर्सेशन याद है, 20 साल पहले आपका किताब लिखने का विचार नहीं था, बट ओवर you become an author because you love the, it comes, you have a family business, but you still comes from within. So even I work so much with FMCG and other big clients, in terms of, we have a list of 500 plus multinationals that we must have serviced in last 20 years, but various segments, FMCG से भी हैं। और but gym is something I personally enjoy. मेरे को खुद मजा आता है because creativity दिखाने का मौका मिलता है, लोगो मिलता है, उससे हम merchandise बनाते हैं, कलर्स क्रिएट करते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं कस्टमर के माइंड में, और वो एक क्रिएटिवली टू अ क्रिएटिव पर्सन इज वेरी सेटिस्फाइड। डेफिनेटली। और मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि मैंने खुद जिम ओन किया है, रन किया है, एंड जिम्स जब से आई हैव गेन्ड जब से होश संभाला है, मैं जिम्स के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। तो जब तक हम जो मेंबर है, क्लाइंट है, जब तक उसका जिसे कहते हैं ना ध्यान नहीं रखेंगे, देखो हर मेंबर आपके पास जो है ना वो रिजल्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से नहीं आता। हर मेंबर का अलग है, स्टेटस अलग है, और उसका जो ओरिएंटेशन है डिफरेंट है। देखिए, आप जो एक वर्ड अगर मैं कहूंगा,
बड़ा पावरफुल शब्द है अंग्रेजी भाषा में, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करना किसी को, कि माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करना, कि आप एक स्टेट ऑफ माइंड में आए कि मुझे वजन लूज करना है क्योंकि मेरी फोटो अच्छी आए, और आप उस माइंडसेट में आ गए कि भैया अगर मैं फिट नहीं हुआ तो आई एम गोइंग टू हर्ट माई बॉडी, आई एम गोइंग टू डाई अर्ली। वो आपके अंदर से आ रहा है, आप खुद 5 बजे उठ रहे हो, आप खुद एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ऑटो मोड पे चल रहे हो। And the best example I can think of is Akshay Kumar. He has got no dearth of money, but why does he wake up at 4 and work for 2 hours every in his personal or wherever he goes? So, it is transformation कहीं ना कहीं बहुत जरूरी चीज है, और जो जिम मुझे लगता है अपने मेंबर्स को ट्रांसफॉर्म कर पाता है, उनको वो एहसास दिला पाता है कि फिटनेस बहुत जरूरी है। आप कैसे, मतलब वो जिसे कहते हैं ना दिल के अंदर छूने वाली बात, वो आपको करनी पड़ेगी कि कस्टमर को लगे हाँ, और रिजल्ट चाहिए। डाइट कंट्रोल करना है उसका अगर नहीं आ रहा है उसको फोन करना है, अगर वो परेशान चल रहा है उसको काउंसलिंग करनी है, उसको अगर बड़ी उसका खराब है तो बड़ी चेंज करना है, सो यू हैव टू ट्राई एंड यू हैव टू बी ऑन देम। तो मतलब वो बात है ना, एक और वो बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट है कि प्रिपरेशन इज समथिंग यू डू बिफोर द वॉर, नॉट ऑन द वॉर डे। मतलब आप तैयारी लड़ाई से पहले करते हैं, लड़ाई वाले दिन नहीं करते। रिन्यूअल वाले दिन कहेंगे सर मैं दुनिया बदल दूंगा आपके लिए, इट्स नॉट गोना वर्क। बट अगर आपने तैयारी करी मेरे साथ 11 महीने मेरे साथ आप जिम में आपका ट्रेनर रहा, मुझे सेटिस्फाई किया, डेफिनेटली आई विल रिन्यू माय मेंबरशिप विद दैट। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी चीजें हैं। एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, अब तो किताब ऑलमोस्ट छप गई है, आप किताब के अंदर क्या लिखने वाले हैं, थोड़ा वो भी आप व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि मैं तो बोलता रहूंगा ब्रांडिंग के बारे में जितना मर्जी मेरे से बुलवा देखो जैसा कि मुझे ऐसा लगता है, जैसा अभी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी, तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इज अ सिंपल जर्नी। देखिए आपने भी वर्ड वाइज किया है जो मैंने कहा है। हाँ, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इज अ रियल सिंपल जर्नी, बट आपके जो टूल्स एंड टैकल्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, अगर वो आपको अच्छी तरह पता है और एक सेट पैटर्न, एक सेट ट्रैक है आपके पास कि इस पर चलना है और इन चीजों का ध्यान रखना है, तो डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। उसमें सब कुछ आ गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, आपका मोटिवेशन आ गया, आपकी ट्रेनिंग प्लान्स आ गए, आपके डाइट प्लान्स आ गए, हाउ टू टैकल विद इंजरीज आ गया, बॉडी असेसमेंट है इंटरनल एक्सटर्नल। तो आई हैव ट्राइड टू लिटरली कवर ईच एंड एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। मतलब मैंने एक एग्जांपल के सेट लिखा भी है उसमें, इट्स लाइक ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू लद्दाख, दैट टू ऑन बाइक। तो एडवेंचरस है लेकिन रिस्की भी है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव, और वो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तैयारी क्या है? इंटरनल असेसमेंट है, एक्सटर्नल असेसमेंट है, टूल्स एंड टैकल्स क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, आपका ट्रैक क्या है, आपके ट्रेनिंग प्लान्स क्या हैं, आपके मील प्लान्स क्या हैं। फिर मैंने एक स्पेशल एक चैप्टर ऐड किया है कि एक पॉइंट तक आने के बाद हमें पता नहीं होता कि अब हमें क्या करना है। चलो यार 2 किलो 4 किलो वेट कम हो गया, नाउ व्हाट। तो वो आई हैव रिव्यूड एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट एंड देन हाउ टू मूव फॉरवर्ड। तो आई थिंक अब हाँ, कोरोना ने देखा, आई माई सेल्फ गॉट ऑन टू इंटरमिटेंट एंड आई वाज लकी इनफ टू लूज अबाउट 6-7, बट इट हैज स्टॉप्ड आफ्टर दैट। और अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बिकॉज जिम्स आर क्लोज और वो घर पे रोड पे कितना कर लोगे, इट डजंट गिव दैट किक। मतलब कर तो थोड़ा बहुत रही, बट इट डजंट गिव दैट द फन ऑफ वर्किंग आउट इन अ जिम। डेफिनेटली अभी हम सब लोग उस जिम शब्द को मिस कर रहे हैं और देखते हैं भाई कितनी जल्दी। और अभी जैसे बात हो रही थी, गवर्नमेंट को भी तो कितना लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं बहुत है ना कि रियलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट लेवल पे होना कि कि भाई अगर एक जिम लगता है कितनी चीजें उसमें सेल होती हैं, मतलब फ्रॉम अ मशीन
equipment, t-shirts, so everything, housekeeping का GST. तो if you, so there's a lot of loss for the government. जरूरी है कि भाई it is well taken care of, it is understood in a right way, and जहाँ सब चीजों का तरीका निकाला गया है, तो instead of criticizing, I think the gym association should sit with the government, explain them अगर कहीं miscommunication है या misunderstanding है फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में या जिम्स की रनिंग के बारे में, तो एक क्लियर प्रोटोकॉल जाना चाहिए. और आई थिंक काफी मीटिंग्स हो भी रही हैं. आई कीप सीइंग जितने भी हमारे जिम एसोसिएशन are actively discussing with ministers on the Zoom calls, and things are happening, ऐसी बात नहीं है. But yes, if metro can be opened, I strongly feel gyms can definitely. ये मेरा डेफिनेटली जिम जल्दी ओपन होंगे. और मैं आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके. एंड सबसे बड़ी बात है, जो एक नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट है ना, हमें उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है. और मैं जरूर चाहूंगा लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ पॉजिटिव और कुछ अच्छा शेयर करें, ताकि जिम गोअर्स को भी और जिम ओनर्स को भी एक मोटिवेशन मिले टू मूव अहेड, एंड दैट टू इन अ रॉकिंग वर्ल्ड. भाई मैं स्पेशली छोटे जिम ओनर्स के साथ ये कहूंगा कि प्लीज स्टार्ट लुकिंग इनटू योर ब्रांडिंग. ये आपका नाम है, किसी और का नाम नहीं है. आप इसको प्रमोट करके सिर्फ खुद को प्रमोट कर रहे हैं. और आप किसी भी तरह की मार्केटिंग करते हैं तो उसमें पैसा लगता है. आप गूगल एडवर्ट करते हैं, आउटडोर एडवर्टाइजिंग करते हैं, पेपर में ऐड देते हैं, रेडियो में. दोज आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर्म्स ऑफ. what you do is something which stays with the customer. क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है कि कस्टमर के हाथ में जो चीज रह जाती है वो उसे याद रहती है. एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने कल वीडियो शूट किया था कि विच वाज अबाउट वन कस्टमर ऐसे ही आस्क्ड मी कि कि सर वॉल क्लॉक तो इतनी ज्यादा हो चुकी है और फिर भी आप बड़े ब्रांड वॉल क्लॉक क्यों बांटते हैं. तो देयर वाज अ वेरी गुड बिट ऑफ रिसर्च दैट वाज डन देयर. तो वॉल क्लॉक वाज द ओनली आइटम जिसको आदमी दिन में 7 या 8 बार देखता है. और अगर आप किसी गिफ्ट देखेंगे, आप जब देखेंगे पीछे, these are all the kinds of samples of all the companies that we have done it for, and all the dials can be printed with the bodybuilder, with the gym, with the call of action. तो ऐसे हम लोग करते रहे हैं. बट एक बार ये अगर लग जाती है दीवार के ऊपर जब है, तो जब तक आपको इसको बेटर घड़ी नहीं मिलेगी आप जनरली उसको उतारते नहीं. तो एक बार वो लग गई तो अगले 8-10 साल के लिए लग गई. तो एक रिकॉल वाइज वो मेरे को लगता है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल. और जिसको कहते हैं राइटिंग इज ऑन द वॉल, अंग्रेजी में जिसको हम एक शब्द राइटिंग इज ऑन द वॉल, योर लोगो इज ऑन द वॉल. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट इन द लॉन्ग वे मुझे लगता है कि अगर ये आपके मार्केटिंग का प्लान नहीं है तो ये प्लान जरूर होना चाहिए. जो बड़े जिम्स हैं उनके या चेंज उनका बहुत वेरी एक्टिव ऑन मार्केटिंग, एंड स्मॉल जिम ओनर शुड रियलाइज इट. जहाँ पे उनको ठीक लगे वहां से बनवाएं, बट दे शुड spread the word that the gym is good. उनका लोगो दिखना चाहिए. विजिबिलिटी ब्रांड की होना बहुत जरूरी है जिम जैसे बिजनेस को करने के लिए. जितना आप दिखेंगे उतना आप बिकेंगे. तो वो हिंदी में जो कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है. मुझे लगता है जिम के मामले में तो इट इज ऑफ मार्केटिंग और विजिबिलिटी. जितना ज्यादा आप दिखेंगे एरिया. बहुत लोग गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगाते हैं, तो जब गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी होती है पीछे वो दिखता है कि ये इस जिम का बंदा है. तो स्मॉल थिंग्स, बट यस व्हेन यू पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर, व्हेन यू वेलकम देम विद अ नाइस किट. अगर कोई आपसे मेंबरशिप के बारे में पता करने आया और लेट्स से उसने मेंबरशिप नहीं ली, फिर भी उसे आपने पेन 5 रुपए का या कीचेन 10 रुपए का दे दिया, तो एक फील गुड फैक्टर हो गया. वो बाहर जाएगा, ही विल स्प्रेड द वर्ड, नहीं यार अच्छा मैं करने था, ही गेव मी अ गिफ्ट. एडवर्टाइजिंग होती है, पॉजिटिविटी फैलती है. तो ये स्मॉल ट्रिक्स है. आई मीन इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन व्हिच कैन गो ऑन टिल एजेस, बिकॉज़ आई हैव डन नथिंग for last 20 years. So but yes, it is very very important. You must do it. And the key takeaway from I would like to say, number one, customer के मन से fear निकालना है कि आपने डर को भगाना है कि जो भी डर उसका जिम आने का है, जिम ओनर को ये होने का है, वो होने का है, उसका मन से डर हटा.
दूसरा पेमेंट बिल्कुल ईजी कर देनी है, ये आज तक कभी नहीं हुई। मतलब it could be as low as 500,000 rupees a month or giving 4 months of extra membership, 6 months of everything, so that the customer sticks to you, because ये business ऐसा है हर साल renew होना है। कस्टमर टूट जाए तो वो मैग्नेट जुड़ा रहे, कैसे भी जुड़े, वो जुड़ा बहुत रहेगा सर। और हमारे एक छोटा सा व्यूअर है जो रेगुलर हमारे साथ रहता है, गिनी का, और उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि मस्ट बी ओपन। तो इसी मैसेज के साथ के जिम मस्ट बी ओपन, और जितनी जल्दी खुल जाए उतना अच्छा है। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। It's always a pleasure talking to you, Vishal, and I really wish you luck for your book. And I'm waiting for the invite of the launch party. I'm sure you're going to do a big. डेफिनेटली यू हैव टू गाइड मी फॉर दैट। हम साथ ही रहेंगे, और मैं ये जरूर ब्लेसिंग्स आप देता हूँ कि ऐसे ही जिम्स को आगे बढ़ाते रहिए, ऐसे ही एज आई ऑलवेज कॉल यू द आर्नोल्ड ऑफ जिम सेल्स प्रमोशन। तो ऐसे ही बने रहो और ऐसे ही चलते रहो। वो उंगली पे भी छोटा होगा मेरा भाई से, but that's really. चलो, सी यू सर, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।